वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर टॉपिक विद द क्वांटम नंबर्स। तो व्हाट आर क्वांटम numbers? So you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the orbitals. And what are orbitals? Orbitals is the probability of finding the electron near the nucleus. That space where the electron finding probability is maximum, that space is called orbital. You know that. So with the help of these quantum number, what are quantum number here? The set of four numbers which gives the complete address of electron. जैसे आपको पता है बेटा, हमारा खुद का भी एड्रेस है। अगर हम अपने एड्रेस की बात करें तो सपोज जैसे हमारा हाउस नंबर है, हमारी लोकेलिटी है, हमारा लैंडमार्क होता है, हमारा टाउन होता है, हमारी डिस्ट्रिक्ट होती है, हमारी स्टेट होती है। सेम उसी तरीके से आज हमने बात करनी है द न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनका कंप्लीट एड्रेस क्या होता है। तो according to Bohr theory, you know that according to Bohr, the electron must be present in a circular path. That fixed circular path are called shell. But when we study about the quantum mechanical model, then we study about the some topic with the help of a Schrödinger wave equation. That topic is orbital, and according to Schrödinger, the maximum probability around the nucleus, the path of the finding the electron is not fixed, not circular, that like explained by the Bohr's theory. According to Bohr's theory, the electron finding the near the nucleus in a fixed path, but according to Schrödinger concept that represent the symbol that is psi square, the electron finding probability is not fixed. There is the probability of the finding the electron near the nucleus in a particular space. So तो वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के एड्रेस की बात करूं अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या होता है ये हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो अल्टीमेटली हमने 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में आज स्टडी करनी है, और क्वांटम नंबर का जो बेसिक मैंने आपको बता दिया है क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड आउट करना नियर द nucleus. So we will take 4 quantum number to explain this concept. First quantum number is principal quantum number. Second quantum number is azimuthal quantum number. Third quantum number is magnetic quantum number, and fourth quantum number is spin quantum number. Principal quantum number represented by small n. Azimuthal quantum number represented by small l. Azimuthal or magnetic quantum number represented by ml, and spin quantum number represented by ms. So we will discuss about the topic that is principal quantum numbers. Okay, so the principal quantum number means first quantum number की अगर हम बात करते हैं तो principal quantum number हमें explain करता है about the shell, और ये क्वांटम नंबर आपको पता है बोहर्स थ्योरी का पोस्टुलेट भी रहा है। इट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स थ्योरी ऑल्सो। तो ये हमें शेल के बारे में बताता है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलर पाथ होते हैं, दैट शेल दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिट, इन विच द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। तो यू नो दैट अबाउट द शेल, मैंने यहाँ पर एक एटम भी ड्रॉ किया है, न्यूक्लियस भी रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर चारों ओर मैंने क्या दिखाया है, कुछ शेल्स रिप्रेजेंट करे हैं, और शेल का जो नंबर है उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल एन। You know that n equal to 1, then it is called k, n equal to 2, this is called l, 3, m, n equal to 4, n and so on। ठीक है, तो इसके अलावा ये हमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और क्या इंफॉर्मेशन देता है बेटा, इट गिव द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। अगर मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट की है, सपोज मैंने n की वैल्यू 1 पुट की है, तो n का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा मेरे पास, 1। तो मीन्स पहले ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल कितने हैं, 1। n इक्वल टू 2 की बात करूं मैं, n इक्वल टू 2 की बात करूं तो n इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 2 2 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। तो n इक्वल टू 2 के अंदर कितने हमारे फर्दर ऑर्बिटल्स बोले, या फिर हम वी कैन से दैट हाँ n इक्वल टू 2 की बात करूं तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 4, और 4 मीन्स n इक्वल टू 2 शेल के अंदर मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करें n इक्वल टू 3, तो मेरे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 9, और इसका मतलब ये हुआ n इक्वल टू 3 शेल के अंदर मेरे पास कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, मेरे पास 9 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसके अलावा ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन करता है इन ए शेल, एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2n का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। बिकॉज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं तो n का स्क्वायर, तो n इक्वल टू 1 की अगर मैं बात करूं, मैं वैल्यू पुट करूं तो 1,
तो यहाँ मेरे पास निकल के आते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। अगर n की वैल्यू मैं 2 पुट करूं तो मेरे पास यहाँ पर n का स्क्वायर में निकल के आता है ऑर्बिटल मेरे पास 4। तो n इक्वल टू 2 के अंदर सेकेंड शेल के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं बेटा 4। n इक्वल टू 3 की बात करूं तो 3 का स्क्वायर कितने ऑर्बिटल निकल के आते हैं 9, ठीक है। अगर यही मैं बात करूं किसकी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पुट करना है 2n का स्क्वायर। तो n इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं अगर हम, तो 1 का स्क्वायर कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इतने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक शेल के अंदर, वो भी एक्सप्लेन करता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें। इसके अलावा n इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितने आ रहे हैं मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन। आप ये देखेंगे कि इसका डबल ही आ रहा है। अगर यहाँ एक ऑर्बिटल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, 4 ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, ठीक है। तो इससे तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक तो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला m स्क्वायर। ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल के बारे में एक्सप्लेन करता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला 2n स्क्वायर। ये हमें एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन करता है, जो भी हमारे न्यूक्लियस के अराउंड शेल होते हैं वो शेल तभी परमिटेड होंगे तब जब उनके जो एंगुलर मोमेंटम होगा उनके इलेक्ट्रॉन्स का वो किसके इक्वल होगा mvr इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 और n यहाँ पर क्या है n रिप्रेजेंट करता है बेटा शेल को। ये भी आप बहुत थ्योरी के थर्ड पोस्टुलेट में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा ये हमें क्या एक्सप्लेन करता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में भी एक्सप्लेन करता है। दैट एनर्जी इज -1312 अपॉन n स्क्वायर जेड स्क्वायर किलो जूल पर मोल। ये भी हमने बोहर के पोस्टुलेट, बोहर की सक्सेस थ्योरीज में हमने पढ़ लिया है। दिस इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर -1312 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पर n क्या है नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये थ्योरी हमें मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है। जिस शेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस से लेकर उस शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट रिप्रेजेंट द रेडियस, एंड रेडियस इज इक्वल टू 52.9 अपॉन जेड एन स्क्वायर इन पिकोमीटर। ऐसे ही जैसे पिकोमीटर में मैंने 52.9 अपॉन जेड एन स्क्वायर लिया है, यहाँ पर जो एन होगा एन यहाँ पर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली आपने हर कंसेप्ट में एन को देखा और एन रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या एक्सप्लेन करता है अबाउट द शेल और अबाउट द ऑर्बिट्स, ठीक है। तो दीज आर द concept that given by the principal quantum number, and this principal quantum number explained proposed by the Niels Bohr also, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पूरा का पूरा में नील्स बोहर की थ्योरी से ही, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो मेन क्रेडिट जाता है दैट क्वांटम नंबर एक्सप्लेन बाय द बोहर्स, ठीक है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वांटम नंबर दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। Discuss about the second quantum number that is azimuthal quantum number. This quantum number proposed by a scientist, his name is Sommerfeld, ठीक है। So this quantum number represented by small l, and this quantum number is also called secondary quantum number and subsidiary quantum number. Fine. And this quantum number explain about the subshell, as the principal quantum number explain about the shell, and this quantum number explain about the subshell. Fine. Means the shell also contain subshell. This quantum number also explain the angular momentum. The concept is almost similar to the concept of a Bohr theory, like mvr is equal to nh upon 2 pi, but in this concept we will take a under root l plus 1 instead of n की जगह पर हमने यहाँ पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l लिया है। और दिस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ऑल्सो एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ ऑल द सबशेल्स। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट। सो अगर मैं बात करूं बेटा सबशेल की, तो आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले, एक ये जो क्वांटम नंबर है हमें n-1 का कंसेप्ट फॉलो करने को कहता है। अभी n-1 क्या है अभी आप देखते जाइए, बहुत अच्छे से समझिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये देखिए n की वैल्यू मैं ले रही हूँ 1 2 3 4, दीज आर अवर शेल्स, ठीक है, 5 भी ले सकते हैं। l की वैल्यू n से 1 कम होगी, 0 1 2 3 4। n की वैल्यू l की वैल्यू n से 1 कम होगी, तो 1 लिया है तो l लूंगी मैं 0। और इसके लिए एक डेजिग्नेशन दे दिया SPDFGH like this. Here the S represent the spherical, P represent the principal, D represent the diffused, F represent the fundamental, and so on. Fine. So again I will repeat this quantum number and P explain the subshell.
shall contain subshell. This quantum number represented by L. This is called secondary quantum number. It is also called subsidiary quantum number, and this concept proposed by the scientist. His name is Sommerfeld. ठीक है. To explain this concept, we must remember this type of a table, and we will follow the concept n-1 means अगर n equal to 1 then L equal to 0. एक कम रहेगा और एक डेजिग्नेशन उसके लिए रिप्रेजेंट कर दी गई है S. n equal to 2, L equal to 1 represent P, principal. Okay, n equal to 3, L equal to 2, this represent D, this is called diffused. n equal to 4, L equal to 3, and this is called F. F is called fundamental. Fine. So now you must remember n equal to 1, L equal to 0, and 0 equal to S. So our subshell, so the subshell of the shell is 1s. Fine. n equal to 2, L equal to 0, और उसका एक माइनस वाला कम वाला भी लेके चल रहा है हमको 0 and 1. So n equal to 2, for 0 it is considered S, and for L it is considered P. So we have subshell. तो n equal to 2 shall contain 2 subshell, 2s and 2p. Fine. So again I will repeat, n equal to 1, L equal to 0, and for a 0 the designation, the symbol of subshell, the representation of subshell is S, so the subshell is 1s. n equal to 2, L equal to 1, but हमें lower 1 भी consider करके चलना है according to this concept. L equal to 1, and so considered n equal to 2 के लिए हम दोनों consider करके चलेंगे, 0 भी 1 भी, तो value है 2s 2p. 0 के लिए S, 1 के लिए P, तो 2s 2p हमें दोनों लेके चलने हैं. तो n equal to 2 shell के अंदर there are 2 subshell, 2s and 2p. Fine. Similar in this way, this concept is also explained. n equal to 3, L equal to 0, 1, 2. For S, the designation is S. 1 के लिए P, D और 2 के लिए D. So consider 3s, 3p, 3d. Must remember. And n equal to 4, this is the shell, and to represent the subshell we take a concept of n-1, 0, 1, 2, 3, and the designation is S, P, D, F. So n equal to 4 contain 4 subshell, 4s, 4p, 4d and 4f. So each shell, n equal to 1 shell contains subshell 1s, n equal to 2 contains subshell 2s and 2p, n equal to 3 contains subshell 2s, 3s, 3p, 3d. n equal to 4 contain n equal to 4. Here n equal to 4 means shell and have subshell 4s, 4p, 4d, 4f. Fine. So now I will but must note this is a very important topic according to the, अगर मैं क्वांटम नंबर की बात करूँ, क्वांटम नंबर में बेस यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि शेल के बारे में तो आप बोर्स थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके थे. दैट रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट ऑल्सो नील्स बोहर, एंड दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन्ड बाय द सोमरफेल्ड, एंड इन दिस कंसेप्ट ही एक्सप्लेन द शेल कंटेन सबशेल. फाइन. सो नाउ वी विल, एक हम छोटा सा इसी तरीके से जैसे हमने शेल ड्रॉ करे थे वैसा ही हम एक डायग्राम और ड्रॉ करेंगे. न्यूक्लियस में हमने बनाए शेल. ठीक है. तो अभी हम इसको इस तरीके से ना लेकर इस तरीके से भी ले सकते हैं. न्यूक्लियस पूरा ना बनाकर, ये मैं 3 शेल ले रही हूं, 4 ले लेते हैं. n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4. तो n इक्वल टू 1 के अंदर कितने शेल थे बेटा? एक ही था, 1s. n इक्वल टू 2 के अंदर कितने सब शेल हो गए? 2. एक का नाम 2s, एक का नाम 2p. n इक्वल टू 3 में कितने हो गए थे? 3. एक का नाम 3s, 3p, 3d. n इक्वल टू 4 शेल के अंदर कितने सब शेल हो गए थे? 4. 4s, 4p, 4d, 4f. तो ये एक मेरा नया फिगर निकल के आता है रिलेटेड टू एटम, क्योंकि बोहर्स की थ्योरी हमारा जो फिगर था वो सिंगल ही था, एक शेल n1, दूसरा शेल 2, तीसरा शेल 3. बट अगर मैं बात करूं सब शेल की, तो पहले शेल के अंदर है एक सब शेल दैट इज 1s, सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल है 2s और 2p, मैंने उसको 2 में डिवाइड कर दिया. थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल है 3s, 3p, 3d. फोर्थ शेल के अंदर 4 सब शेल है 4s, 4p, 4d, 4f. सो दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू द, हमारा जो कंसेप्ट था दैट इज अजीमुथल क्वांटम नंबर. सबशेल बताने के बाद इस थ्योरी ने हमें और क्या एक्सप्लेन किया? इस थ्योरी ने हमें बताया अबाउट द
मैंने बताया आपको अबाउट द एनर्जी ऑफ द सबशेल की बात करूं तो एनर्जी ऑफ सबशेल की बात करूं तो बेटा सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो लास्ट सबशेल की रहेगी 4F, देन 4D, देन 4P, देन 4S। तो लास्ट सबशेल हैज मोर एनर्जी। ठीक है, तो ये मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि सब जो भी हमारे जितना दूर चले जाते हैं तो इसकी हाईएस्ट एनर्जी इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, और अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम की तो एंगुलर मोमेंटम जैसे मैंने शेल के कंसेप्ट में पढ़ा था NH/2π, क्योंकि यहाँ मेरा जो एन था वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब बात हो रही है सब शेल की। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर में MVR किसके इक्वल है बेटा H/2π और LL/+1। और ये जो 2H/2π है इसको कुछ बुक्स के अंदर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। H के ऊपर ये हमने एक बार लगा रखा है। ठीक है, तो कुछ बुक्स में आपको H/2π को H बार से भी रिप्रेजेंटेशन दिखाई देगा, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम की बात करें अगर हम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इज केस ऑफ एजिमुथल क्वांटम number. So now we will discuss about the magnetic quantum number. We will discuss about the third quantum number. That quantum number is magnetic quantum number, and magnetic quantum number represented by ML, and this concept explained by Landé. This concept explained by, proposed by Landé, and this concept helping explain the orientation of electron, orientation of orbitals, and this concept explain the how many orbitals present in a subshell. So on the basis of the orientation, the ML means the magnetic quantum number represented by -L0+1। अब इसका मीनिंग अभी आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। और ऑर्बिटल्स इन सबशेल, जैसे शेल कंटेन सबशेल, शेल एक्सप्लेन बाय द बोहर्स एंड द सबशेल एक्सप्लेन बाय द सोमरफेल्ड, एंड नेक्स्ट इज orbitals also present in a subshell. This explained by the Landé. So the orbitals कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला है 2L+1। अभी मैंने आपको एक बात बताई, n = 0, n = 1 एंड L = 0 मीन्स n-1 लेना है हमेशा हमने L को। ठीक है, एक कम लेना है। तो L = 0 के लिए मैंने डेजिग्नेशन लिया था स्मॉल s, तो हमारा सबशेल निकल के आया था 1s। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बतानी है। अब आप L की वैल्यू यहाँ पुट करिए, ये आपका शेल था n = 1, सबशेल आपका निकल के आया 1s, शेल तक पुट करा, सबशेल तक किया। अब बात करने हैं ऑर्बिटल्स की, तो L की वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो L की वैल्यू पुट करने के बाद 2 × 0+1, तो मेरे पास निकल के क्या आ रहा है बेटा यहाँ पर 1। और ऑर्बिटल को डिजाइन करने का तरीका होता है या तो इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द वन ऑर्बिटल। So 2 × 0 because n contain 1, n is equal to shell contain L = 0 and our subshell is 1s, L = 0। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो मेरे पास निकल के आता है एक ऑर्बिटल। तो मेरे पास जो ML आया है, मतलब S सबशेल के अंदर मेरे पास कितने ऑर्बिटल आए हैं, मेरे पास एक ऑर्बिटल निकल के आया है। फाइन। सो अगर मैं बात करूं, हो गया फाइन। और अगर हम बात करते हैं अपने सेकंड की, अगर मेरे पास n = 2 है तो L = मेरे पास 0 है और 1 है पॉसिबिलिटीज। तो मेरे पास 0 के लिए S होता है और 1 के लिए P होता है। तो 2s और 2p, दीज आर द 2 सबशेल ऑफ शेल दैट n = 2। ये मैंने आपको सबशेल वाली कंसेप्ट आपको मैंने अभी बताया है एजिमुथल क्वांटम नंबर के अंदर। बट अगर मैं L की वैल्यू, वो तो हमने एक कम लेकर भी चल रहे हैं, तुम 0 भी कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, तो L की वैल्यू बट अगर मैं 1 लू यहाँ पर 2 × 1 + में 1, ठीक है, तो मेरे पास कितना निकल के आ रहा है 3। तो 3 सबशेल आ रहे हैं, वो 3 ऑर्बिटल्स हमारे निकल के आ रहे हैं। और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है 1 2 3। तो अगर मैं L की वैल्यू 1 ले रही हूं तो मेरे पास ऑर्बिटल आ रहे हैं 3, और यही मैंने अगर L की वैल्यू क्या ली थी, L की वैल्यू 0 ली थी, तो मेरे पास ऑर्बिटल निकल कर आ रहे थे 1। फाइन। और L की वैल्यू 0 S के लिए है, तो S के लिए ऑर्बिटल होता है 1। L की वैल्यू 1 किसके लिए है, P के लिए होती है L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 1 P के लिए होती है। तो मेरे पास ऑर्बिटल कितने आए 3। ठीक है, और इसे तो कुछ नहीं, इसे तो नॉर्मली हम एक S ऑर्बिटल बोल देते हैं, और इसे हम नाम देते हैं PX, PY एंड PZ।
इन ऑर्बिटल्स को बोलते हैं px, py, pz, और इनकी जो वैल्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू ऑफ l, इन्हें बोला जाता है -1, 0 एंड +1, px, py, pz, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है -1, 0 एंड +1। फाइन। सो अगर मैं बात करूं आपसे कि l इक्वल टू 1 के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल है, और उनकी वैल्यू क्या है, -1, 0, +1, और जो 0 वैल्यू होती है वो pz के लिए होती है, और जो px और py है उसकी वैल्यू वेरी करेगी, +-1 दोनों के लिए रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, और 0 के लिए m इक्वल, आपकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू 0 के लिए p1 के केस में हमारे पास कितनी आ रही है, l इक्वल टू 1 के केस में l इक्वल टू 1 p को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 ऑर्बिटल मेरे निकल के आए, उन 3 ऑर्बिटल को बोलेंगे px, py, pz, और px, py, pz के लिए वैल्यूज लेनी है इस ओरिएंटेशन के बेस पे, -1, 0, +1, और 0 लेंगे pz के लिए, और px और py आप वेरी कर सकते हैं, +-1 वैल्यू इसके लिए रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा सेकेंड ईयर, थर्ड इज l इक्वल टू, मेरे बात कर रहे हैं 2 की, ये d को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू पुट करेंगे 12 + 1, 2 × 2 + में 1, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं यहाँ पर, 5 ऑर्बिटल निकल के आ रहे हैं, तो ओरिएंटेशन के बेस पे उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, अगर 5 ऑर्बिटल है तो मैं 5 ऑर्बिटल ऐसे दिखाऊंगी, ओरिएंटेशन के बेस पे से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इनको, -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, ये जो 0 है ये dz² को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो d ऑर्बिटल है इसको हम 5 शेप्स में, 5 ओरिएंटेशन में डिवाइड कर रहे हैं, dxy, dyz, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड लास्ट वन इज dz²। तो ये वैल्यू जो है dz², इसके लिए जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वो रहेगी 0, और dx, और मैं बात करूं dy के लिए हमारी dx² - y² और dz² की बात करें तो हमारी वैल्यू निकल के रहेगी, यहाँ पर आएगी हमारे पास +-2, और अगर हम बात करें dxy और dyz की, यहाँ पर बात करते हैं dyz और dzx की, अगर मैं बात करूं तो ये मेरी वैल्यू निकल के आएगी +-1। ठीक है, तो अगेन आई विल रिपीट, अगर l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 means L represent the azimuthal quantum number and we will take a value 2 here। अगर 2 ले रहे हैं तो 2l + 1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए ऑर्बिटल्स, ये क्या बता रहे हैं हमें, ऑर्बिटल निकालने के लिए आपको L की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 2 × 2 + 1 कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, 5 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बता दिया, 5 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। ये जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इनको ओरिएंटेशन के बेस पे कैसे दिखाते हैं, -l, 0, +1 +l मीन्स 5 है तो -2, -1, 0, +1, +2, और ये जो 0 वैल्यू है, और d ऑर्बिटल की खुद की 5 ओरिएंटेशन है, 5 शेप्स हैं, dxy, dyz, dxy, dyz। याद करने का तरीका है dxy, dyz, dzx, dx² - y², और लास्ट वन है dz²। सपोज अगर मैंने बात करी है 3dz² की, तो इसमें आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 0 रहेगी। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू dz के लिए क्या रहेगी, 0 रहेगी, dx² - y² और dxy के लिए वैल्यू रहेगी +-2, और dyz और dzx के लिए वैल्यू रहेगी +-1। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ d इन केस ऑफ ए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। फाइन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। Now we will discuss about the spin quantum number. The spin quantum number explained by the Uhlenbeck and Gaudsmit. And this in the spin quantum number we only discuss about the spin of electron. जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं तो they have some spin. The spin may be clockwise, the spin may be anti-clockwise when they revolve around the nucleus. Maybe in a fixed orbit or maybe in a orbital. They always revolve in a form of a spin. +½ represent the clockwise direction of electron or -½ represent the anti-clockwise direction of electron around the nucleus when they revolving around the nucleus. Fine. So this is the concept. We are discuss about the 4 quantum number. First is principal quantum number, second is azimuthal quantum number, third is magnetic quantum number, and fourth one is spin quantum number of
इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस. ठीक है, फाइन. सो अब हम बात करते हैं बच्चे, इतना बताने के बाद अब आपको एक छोटा सा डायग्राम जैसे हमने बनाया. ये डायग्राम मेरा रिप्रेजेंट कर रहा था, सेंटर में न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे अपने शेल में. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे अपने परफेक्ट शेल के अंदर. ये मैंने शेल दिखा है. बाद में और शेल बोला 1 2 3 4 n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4. बट जब शेल भी डिवाइड कर दिए गए दोबारा से सब शेल में, आपने देखा n इक्वल टू 1 का एक ही शेल था, n इक्वल टू 2 का 2 शेल, n इक्वल टू 3 के 3 शेल, n इक्वल टू 4 के 4 शेल हो गए. फिर हमने बताया जो भी शेल कंटेन सबशेल एंड सबशेल कंटेन ऑर्बिटल. सबशेल कंटेन ऑर्बिटल. तो पहले शेल का ऑर्बिटल एक ही था. दूसरे शेल में हमने क्या पढ़ा, सबशेल 2 थे लेकिन ऑर्बिटल कितने थे, 4 ऑर्बिटल पड़े. तो पहले शेल में मेरे पास क्या था, 1 शेल, तो मेरे पास 1 2 3 4 ही थे. सबशेल में मेरे पास 2 के पास कितने सबशेल थे, 2s और 2p. 3 के बाद कितने पास कितने सबशेल थे, 3s 3p 3d, है ना. 4 के पास कितने सबशेल थे, 4s 4p 4d 4f. फाइन. तो s contain how many, this contain only 1 subshell. फाइन. सो 2s के पास कितना ऑर्बिटल था, 1. p के बाद पास कितना ऑर्बिटल था, 3. 3 के पास कितना ऑर्बिटल था, 3 के बाद 3s 3p 3d में s में कितना ऑर्बिटल था, 1. p में कितने ऑर्बिटल थे, 3. d में कितने ऑर्बिटल थे, 5. सेम ऐसे ही हमारे बात करें 4s में कितने, s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1. p में कितने होते हैं, p में ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास 3. d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5. और f में कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 7 ऑर्बिटल होते हैं. ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए शेल कंटेन सबशेल, सबशेल कंटेन दिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया. इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है दिस इज ऑर्बिटल. तो शेल एक्सप्लेन बाय बोहर्स थ्योरी, बोहर्स कंसेप्ट या बोहर्स ने प्रपोज किया कंसेप्ट. सबशेल का कंसेप्ट हमारा एक्सप्लेन किया सोमरफील्ड ने, और ऑर्बिटल का कंसेप्ट हमें एक्सप्लेन किया लैंडे ने. और ईच ऑर्बिटल कंटेन इलेक्ट्रॉन. हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. वन इज अपर स्पिन और सेकंड वन इज लोअर स्पिन. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑलवेज या रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पिन फॉर्म और मे बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन दे रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. सो अब हम बात करें, अगर सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है. अगर मैं बात करूं एन की बात करें, या हम बात करेंगे अपनी सबशेल, ये शेल है, ये सबशेल है, ये ऑर्बिटल है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करती हूँ. तो 1 में आपको बता दिया है मैंने, ये वैल्यू हमारी सबशेल की वैल्यू हमारी कितनी निकल के रहती है, यहाँ पर एक ही सबशेल रहता है. ये मेरा सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा ऑर्बिटल को, ये ऑर्बिटल है. 2 में मेरे पास कितना आया, 2s और 2p, क्योंकि मैंने n-1 बताया था. लोअर भी लेकर चल रहा है तो s भी लेकर चल रहा है, p भी लेकर चल रहा है. तो एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल, 4. n इक्वल टू शेल के अंदर कितने मेरे पास सबशेल थे, 3s 3p 3d. तो एक p में कितने होते हैं, p में कितने होते हैं, 3. और d में कितने बताया अभी मैंने आपको, 5 ऑर्बिटल होते हैं. एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2. अपर स्पिन लोअर स्पिन. इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक अपर एक लोअर, एक अपर एक लोअर. जितने ऑर्बिटल है उसका डबल हो जाएगा, 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है. तो हमारे पास कितने निकल के आएंगे, ऑर्बिटल मेरे पास यहाँ पर कितने रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ऑर्बिटल है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18. 4 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8. एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2. ठीक है, तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. n² मेरा ऑर्बिटल को निकालने के लिए फॉर्मूला है, और 2n² मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला है, और जो n है ये शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट. और एक कंसेप्ट मैं और भी बता देती हूँ साथ के साथ. अगर मेरा शेल है 4 शेल है मेरा, अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, 4th शेल की, तो 4th शेल में मेरे पास सब शेल है 4s 4p 4d 4f. फाइन. ऑर्बिटल, s में ऑर्बिटल कितना होता है, 1. p में कितने होते हैं ऑर्बिटल, 3. d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, फॉर्मूला है 2l+1, फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो इसको. और f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, देखो 2l+1. ठीक है, f के लिए हमारी l की वैल्यू कितनी होती है, 3.
एफ के लिए एल की वैल्यू 3, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 2 × 3 + 1 कितना आ गया? 7 ऑर्बिटल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 और 16 ऑर्बिटल है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? डबल करिए। 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल, एंड शेल कंटेन सब शेल कंटेन orbital contain electron revolve around the nucleus in a spin, upper spin lower spin। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ होता है, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ रिप्रेजेंट किया जाता है in each orbital। So this is the concept of quantum numbers। This is a complete detail about the electron present in the space around the nucleus, ठीक है, and a complete explained by this। ये स्टडी करने के बाद आपको ऑर्बिटल और ऑर्बिट में डिफरेंस बनाने में बहुत आसानी होगी। अब आप एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। फाइन, सो आज के लिए इतना ही। कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द जितने भी हमने ऑर्बिटल्स पढ़े हैं, एस पी डी एफ। एस रिप्रेजेंट द स्फेरिकल, डी रिप्रेजेंट द डिफ्यूज, पी रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड एफ रिप्रेजेंट द फंडामेंटल। इनसे रिलेटेड जितनी भी शेप्स पॉसिबल हो पाएंगी, व्हाट आर द ओरिएंटेशन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स, वी विल डिस्कस इन द next class। So do your work regularly।